راہیل اسے اچھی طرح بتا چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، ساتھ اپنا بھی رونا رونے لگا۔ اب پتہ نہیں کب تک یہ ڈان تمہیں رکھے اپنے پاس، ہمارا تو نقصان پکا کروا کر رہے گا، ابھی بہت سین رہتے ہیں تمہارے، میرے ساتھ ہی ہونا تھا یہ سب کچھ۔ راہیل صاحب ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے اس فلم کے، ان کو اپنے نقصان کی پڑی تھی، ماہنور کا احساس تک نہ تھا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تھا اپنا رونا رونے کے بعد۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی اتنی بڑی شخصیت سے دشمنی مول لے سکتا ہے اس کی خاطر۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ سعد ملک کی کال آئی، جو اس کی فون اٹھاتے ہی بول اٹھا، واو یہ تو بہت زبردست ہو گیا ہے کہ سلطان شیخ سے کانٹیکٹ ہو گیا، سچ میں بڑا فائدہ ہوگا، جاؤ جا کر اسے خوش کرو، سچ میں کمال کر دیا تم نے، اتنی فلمیں ملیں گی اس کے بعد کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، کریئر بن جائے گا تمہارا۔ وہ اپنی کہے جا رہا تھا جبکہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سعد فون بند کر گیا اور اس کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے، سلطان کی قربت میں ہمیں مت بھول جانا ڈارلنگ، کیا اونچا ہاتھ مارا ہے، سچ میں I'm proud of you نور، لعنت ہو تم پر۔ وہ غصے سے بولی، دل ہی دل میں۔ صوفے پر بیٹھ گئی تھی وہ سر تھام کر، دونوں ہاتھوں میں۔ بے بسی کیا ہوتی ہے آج اسے پتہ چلا۔ کچھ دیر میں اس کی ماں کا فون آیا جس کو ماہنور نے اپنے احساس بتائے۔ وہ اسے کچھ یوں کہہ رہی تھی کہ نور یہ سب اس فیلڈ کا حصہ ہے میری بچی، ان ڈان ٹائپ لوگ یا بڑے سیاست دانوں سے سب کے پاس ایکٹریسز کو جانا پڑتا ہے، چاہے کتنی بڑی ہیروئن بن جائے، ہاں اس سب سے تو گزرنا پڑتا ہے، سب کے لیے یہ فیلڈ ایسی ہی ہے۔ وہ لوگ پاورفل ہیں بہت، لمحوں میں ہمیں نہ صرف اسکرین سے غائب کر سکتے ہیں بلکہ دنیا سے بھی غائب کر دیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ان کا۔ بہتر ہے وہاں جاؤ تو خوش ہو کر جانا، رونی شکل بنا کر مت جانا، سمجھ رہی ہو نا؟ فدا ہو کر ہنستی مسکراتی عورت ان مردوں کو تسکین دیتی ہے، نہ کہ روتی دھوتی شکل بنائی عورت۔ وہ اپنی کہے جا رہی تھی، جوش میں بغیر ماہنور کا سوچے۔ لمحوں میں ماہنور پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ وہ سب جانتی ہیں جو اس کے ساتھ ہوا اور جو کچھ ہوتا آیا، اس سب سے اس کی ماں باخبر ہے یا شاید وہ بھی ان سب کا حصہ رہ چکی ہیں۔ ماہنور کی چپی کو محسوس کر کے نمرہ خان بولی، نور سن رہی ہو نا؟ جی موم، وہ آہستہ سے بولی۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ دوبارہ بولی، ایک بات کا سچ سچ جواب دیں گی آپ؟ اب کے لہجہ سرد تھا ماہنور کا۔ پوچھو۔ وہ چونکی تھی اس کے اس انداز پر۔ سعد ملک نے جو کیا وہ آپ کو پتا تھا نا موم؟ ہنوز انداز وہی سرد سا تھا ماہنور کا۔ نور میری جان ایسی بات نہیں ہے، وہ گڑبڑا کر بولی۔ اب صحیح معنوں میں ان کے چکے چوٹے تھے۔ پھر کیسی بات ہے؟ ورنہ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہ سب روتے ہوئے کرتی رہی ہوں؟ رونی شکل آپ نے کب دیکھی میری؟ ماہنور کے لہجے میں طنز تھا آپ کے۔ نور تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی بات نہیں، میں ڈر گئی تھی ڈان کا سن کر۔ وہ صفائیاں دینے لگی، گھبراہٹ سوار ہونے لگی نمرہ خان کے اعصاب پر۔ وہ کب چاہتی تھی کہ ماہنور کو یوں سب پتا چلے، ان کی گھبراہٹ سب واضح کر گئی تھی نور پر۔ اچھا، مجھے لگا کہ آپ بھی سعد ملک کی طرح خوش ہوئی ہیں ایک ڈان کے اس طرح بلانے پر۔ بتائیں نا آپ کو کیا چاہیے اس شخص سے؟ اب کے ماہنور نے ڈائریکٹ وار کیا اس پر۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی اور بولی تو لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی، نور میری بیٹی تم مجھے غلط مت سمجھو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، وہ سب سچ نہیں ہے میری بچی، بے فکر ہو جائیں موم، اب میں جو سمجھی ہوں نا بالکل ٹھیک سمجھی ہوں، اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی موم۔ اب بھی انداز وہی تھا اور لہجے میں بیگانیت تھی، بھرپور بیگانیت۔ کیا سمجھی ہو پھر تم؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی کہ جب برباد کرنے والی اپنی سگی ماں ہو تو کوئی اس کو برباد ہونے سے نہیں بچا سکتا موم، مجھے برباد کرنے والی آپ ہیں۔ اب کہ اس کا لہجہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ چیر دینے والا تھا، لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ پلیز نور ایسے نہ کہو، میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرنا، میں روبرو آ کر تمہیں سمجھاؤں گی۔ وہ اب بھی کوشش کر رہی تھی اس کی نظر میں خود کو صاف ثابت کرنے کی، جبکہ ماہنور دو ٹوک لہجے میں بولی، کوئی لفظ میرا ازالہ نہیں کر سکتا ماں، میرے خسارے کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا، مجھے برباد کر دیا آپ نے، اتنی ہوس تھی پیسوں کی تو کوٹھا کھول کر اس پر بٹھا کر بیچتی نا مجھے، اتنا دکھ نہ ہوتا تب جتنا اعتبار کر کے اب ہو رہا ہے مجھے دکھ۔ میں نے اعتبار کیا تھا، کتنا اعتبار کیا تھا آپ پر، جس کا نتیجہ یہ دیا آپ نے، شاباش ہے، خود کو ماں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، پر آپ نے تو اپنی بیٹی پہ نقب لگا دیا، اس کی زندگی پہ نقب لگا گئی آپ تو اس ڈائن سے بھی بدترین ہیں۔ ماہنور نے اتنا کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔
अब वो सिसक उठी थी। सारा एतबार जो माँ पर था टूट कर बिखर गया। वो बिखर गई थी बुरी तरह से। वो रात उसने रो कर गुजार दी। अगले दिन कौन सी कयामत आनी थी सब उससे बेखबर थे। वो अपने आज पर रो रही थी। कितने आंसू उसके नसीब में थे ये तो वक्त ने बताना था। सुमन नेहा की डायरी पर हाथ फेर कर रो पड़ी। ये शेर पढ़कर बेआवाज रोती रही थी वो। ये डायरी उसे तब मिली जब वो उसके गुजरने के बाद कुछ दिन यहाँ आकर रही थी बच्चों की वजह से। सकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर। चीख भी लेती हूँ और आवाज भी नहीं आती। कितने दर्द वो अकेली सहती रही थी। बैक वक्त कितने मुहाजों पर लड़ती थी। अजलान शाह का हत्याकामेज रवैया, सास और नंद की मार, फिर अजलान शाह की गर्लफ्रेंड्स, उनको सर्विस देना। इतनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त की तुमने नेहा, क्यों? वो रो रही थी शिद्दत गम से। किससे पूछती? जिसने बर्दाश्त किया था वो तो चली गई थी, पर सुमन को नासूर दे गई थी। मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करूँगी जिसने तुम्हें इन हाल में पहुँचाया। काश ये रिश्ता एक्सेप्ट ना करते तुम्हारे लिए। अगर मुझे रिजेक्ट कर ही दिया था अजलान शाह ने तो हम भी उसे कर देते रिजेक्ट। तो तुम आज जिंदा तो होती मेरी बहन, तुम जिंदा तो होती। वो बेदर्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। ये सब खुद से कहते हुए आज उसे वो दिन याद आया जब पहली दफ़ा वो लोग उनके घर उसे देखने आ रहे थे। आप ही प्लीज़ अच्छे से तैयार हो जाएं। नेहा ने सुमन से कहा। मैं तैयार हूँ मेरी जान, सुमन मोहब्बत से बोली। दोनों शीशे के सामने खड़ी थी। भला ऐसे तैयार होते हैं? ना कोई हैवी शैवी सा ड्रेस, ना चूड़ियाँ, ना मेकअप। ये क्या है? नेहा मासूमियत से उसके हाथ थाम कर बोली। मेरी जान मुझे नहीं पसंद ये सब। सुमन ने सहूलत से कहकर उसके गाल थपथपाए। देखे मैं कैसा तैयार हुई हूँ। दिल लगा कर सुमन आपी। नेहा ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई। तुम्हें पसंद है ये सब, और यकीन मानो तुम पर सूट भी करता है। मेरी बहन दुनिया की हसीन तरीन लड़की है, जानती हो? सुमन ने मज़े से कहा। वाकई उस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो मासूमियत से मुस्कुरा भी रही थी। पर आप ही मुझे आपको तैयार करवाने देना, लाएं चूड़ियाँ और इयररिंग्स पहना दूँ आपको। नेहा ने मैचिंग चीज़ें निकालते कहा, जिसे नेहा के हाथ से लेकर सुमन ने साइड किया उस वक्त। मेरी जान मुझे नहीं पसंद ये सब, मैं रेडी हूँ, सुमन ने प्यार से डबट कर कहा। उसी वक्त उसकी अम्मी कमरे में आई और बोली, नेहा ठीक कह रही है, पहन लो कुछ। नहीं अम्मी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे देखे ना नेहा कितनी प्यारी लग रही है इतनी सी भी तैयारी में। सुमन उसकी नज़र का टीका कान की साइड पर लगा कर बोली, हाँ जैसे इसे देखने आ रहे हो वो लोग। हद है नेहा, मेकअप उतारो और ये जेवर उतारो, अजीब लगता है ये सब। वैसे सुमन को ही देख लो कितनी सादा तैयार हुई है। इसे देखने आ रहे हैं वो लोग, तुम्हें नहीं। शर्मीन बेगम ने समझाया था उसे थोड़ा डांट कर। प्लीज़ अम्मी इसे कुछ ना कहें, सच में ये बहुत खूबसूरत लग रही है। सुमन की फेवर करने पर वो मुस्कुराई खुलकर, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाती नेहा की जो उसने तैयारी में लगाई थी। और अब उनकी माँ को चुप होना पड़ा, वरना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था नेहा का इस तरह तैयार होना। नेहा गुलाबी रंग के जोड़े में हल्का फुल्का मेकअप किए, हाथ में मैचिंग चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ पहने उसके सामने थी, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। उसकी बनिस्बत सुमन रॉयल ब्लू सिंपल कुर्ती में साथ ब्लू ट्राउज़र पहने, गले में स्कार्फ मफलर स्टाइल में पहने हुए थी। जेवर के नाम पर कुछ नहीं, कान में बस टॉप्स और हाई पोनी टेल बनाए एक लट निकाली थी। वो रेडी थी। सुमन सर पर दुपट्टा तो ले लो मेरी जान, माँ ने कहा। अम्मी प्लीज़, जब मैं नॉर्मली नहीं लेती तो अब भी नहीं लूँगी दुपट्टा। आप जानती हैं मुझे, बाकी ये ड्रामे मुझसे नहीं होते। वो कत्तई लहजे में बोली। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं? माँ ने समझाना चाहा, पर सुमन ही क्या जो किसी की सुन ले और समझ ले। अरसा हुआ शर्मीन बेगम को उसके ये अंदाज देखे। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं हूँ डमी बन के आना सबके सामने, सुमन ने निडर होकर कहा। शर्मीन बेगम जानती थी कि अब वो अपनी बात से नहीं हटेगी, सो कुछ भी कहना फजूल है, इसलिए चुपचाप चली गई कमरे से। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा बीवी वाली, बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल करके लाए हैं। मेरी तो मंगनी हुई हुई थी। सुमन के कहे अल्फाज की बाज़गश्त उसके कानों में हुई। मेरी बला से दो और शादियां कर लें अपनी ज़रूरत के लिए, कोई परवाह नहीं मुझे। आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड्स को लाएंगे ना तो सर्व कर दूंगी उन्हें, जैसे नेहा करती थी। वो शदीद अजियत महसूस कर रहा था उसके कहे लफ्ज़ों की वजह से। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाए और स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारा। जिनसे इश्क को उनकी नफ़रत से कहे गए लफ्ज़ कैसे मारते हैं आज अजलान शाह से कोई पूछता तो बताता। हाँ सुमन उसका पहला और आखिरी इश्क थी, जिसे खुद पर वो ममनू कर गया था। नेहा से निकाह के बाद उसी इश्क के इनकार ने उसे तबाह करके रख दिया था, इंसान से जानवर बना दिया था। कितना दर्द जागा था उसके अंदर,
लफ्ज़ों की धार तलवार की धार से तेज़ होती है जो अधमुआ कर देते हैं इंसान को। वो लफ्ज़ जो महबूब की ज़ुबान से अदा हुए, उसकी कैफ़ियत भी कुछ वैसी ही थी उस लम्हे। उसी लम्हे उसे वो दिन याद आया जब उसके सामने वो पहली दफ़ा आई। वो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था, अपने ऑफ़िसर की बात सुनने के लिए उनके ड्राइंग रूम से बाहर निकल कर एक साइड खड़ा था जब 2 लड़कियाँ एक साथ ड्राइंग रूम में जा रही थी। एक सजी-संवरी सी गुलाबी जोड़े में मलबूस, बेइंतहा खूबसूरत, भरे-भरे जिस्म में खूबसूरती लिए हुए, वो अपने हुस्न से किसी को भी दीवाना कर दे, इतनी हसीन, और उस पर सजने के अंदाज ने और दिलकश बना दिया था उसे। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने सर पर दुपट्टा लिया। हाँ, शायद यही लड़की है जिससे रिश्ते की बात चल रही है मेरी, अजलान शाह ने सोचा और कहा, नॉट बैड। बात करते उसने दिल ही दिल में उसे सराहा। हुस्न तो था सो उसने दिल ही दिल में सराहा उस गुलाबी कपड़ों में मलबूस लड़की को। हाँ, वो हुस्न परस्त था, उसे खूबसूरत लगी थी वो उस लम्हे, पर अगले लम्हे उसकी आंखों के आगे किसी जुगनू की तरह दूसरी लड़की वाजे हुई। रॉयल ब्लू कलर में मलबूस, ऊंची पोनी टेल बनाए, एक लट साइड से निकली, नाजुक सी, दुबली पतली सी, गुलाबी होंठों को उसने गोल किया। दरवाजे के पास पहुंचकर आंखों में बेइंतहा एतमाद लिए हुए थी वो लड़की। क्या थी उसकी सादगी में बात जो उसके दिल को धड़का गई, दिल की धड़कनें तेज कर गई थी वो उसकी। उसी लम्हे दिल ने कहा, हाँ, यही वो लड़की है जो उसके आइडियल के खाने में पूरा उतरती है। ऑफिसर क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, बस वो महव होकर देखता रह गया उस परी पैकर को जो अपनी सादगी में भी उसे दीवाना कर गई थी। ऐसा लगा बस वही रह गई है नज़र में, बाकी सब तो उजल हो गया था मंजर से। अजलान शाह को मुकम्मल कर गई थी वो, जब उसने एक उंगली पर लट लपेटी, चारों तरफ नज़र घुमाई अंदर जाने से पहले, क्योंकि खुद पर किसी की वो शदीद नज़रें महसूस कर गई थी शायद, इसलिए होंठों को आपस में पैवस्त करती उसे घूर कर अंदर दाखिल हुई। अजलान शाह को वो पूरी तरह घायल कर गई थी उस लम्हे। दोबारा ज़रूरी कॉल आ गई जो उसे मजबूरन सुनना पड़ी और वहाँ से जाना पड़ रहा था, इसलिए सीधा माँ के पास आया और उनके पास हल्की आवाज़ में बोला, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी भेजता हूँ, आप इन लोगों को बता दें इनकी छोटी बेटी पसंद आई है मुझे, करूँगा तो उससे, वरना किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। माँ हैरान हुई उसके दो टोकनदाज अपनी कहकर वो उठकर दुरानी साहब से मिलता माजरत कर गया कि वो कुछ देर और नहीं रुक सकता, ज़रूरी पहुंचना है, इमरजेंसी है कहीं। वो उसकी माजरत कबूल कर गए क्योंकि समझते थे उसकी जॉब की नौयत। फिर उनसे मिलकर वो रवाना हो गया। जाते जाते उस परी पैकर का हर एक नक्श अपनी आंखों में बस आ गया। लंबे लंबे ढक भरता वो वहाँ से निकल गया। फिर इस कदर मसरूफियात बढ़ी कि उसके पास टाइम ही नहीं था कि ससुराल जाए। मंगनी भी सादगी से उसकी माँ ही कराई। अजलान शाह को वैसे भी शोर शराबा पसंद नहीं था ज़्यादा, इसलिए माँ ने कहा तो वो मान भी गया। बहन ने मंगनी की पिक्चर्स मोबाइल पर दिखाना चाही तो उसने इतना रिएक्शन ना दिया तो वो भी चुप हो गई। नया नया ओहदा था, नए जज्बात, इसलिए वो भरपूर टाइम दे रहा था अपनी जॉब को। ऊपर से कराची के हालात ने पुलिस वालों की नींदें हराम की हुई थी उन दिनों। गुमनाम लाशों के मिलने का सिलसिला, पुलिस पर प्रेशर, हालात की संगीनी ने उसे किस तरह अपने इश्क से दूर किया अजलान शाह को पता ही ना चला। उसे बस इतना पता था कि उसका नाम नेहा है, अपने इश्क का नाम नेहा इसलिए उसने समझ रखा था। मेहंदी की रात वो दूसरी दफ़ा ससुराल वालों से मिला। उस दिन उसकी बड़ी साली कल मायों में गिरने की वजह से शिरकत ना कर सकी जो उसकी छोटी साली ने बताया उसे। वो मुस्कुराकर सुनता रहा। मायों टिपिकल जनाना फंक्शन था, इसलिए अजलान शाह ने शिरकत से माजरत कर ली। वैसे भी लड़के वालों का एक ही फंक्शन था बड़े पैमाने पर 5 स्टार होटल में, और वो था रिसेप्शन। मेहंदी की रात उसे अफसोस हुआ कि वो अपने इश्क का दीदार न कर सका। घूंघट ने बेड़ा गर्क कर दिया था जो बीच में दीवार बना हुआ था। अजलान शाह का मूड खराब हुआ था उस घूंघट वाली पुरानी दकियानूसी रिवायत पर। बहरहाल जब्त कर गया। रस्म के बाद वो थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। बस आज की रात पर्दा कर लो, कल निकाह के बाद तो ये पर्दा हट ही जाएगा, फिर देखता हूँ कैसे करती हो मुझसे पर्दा। जी भर कर देखूंगा तुम्हें। पूर पूर तुम्हारा मेरे इश्क के रंगों में ना भरा तो मेरा नाम भी अजलान शाह ने, वो सोचता हुआ पंडाल से निकल गया था। अगले दिन निकाह के बाद जब उसकी नज़र स्टेज से नीचे सामने सोफे पर बैठी उस लड़की पर पड़ी तो वो दंग रह गया। अगर उसका इश्क वहाँ है तो उसके साथ कौन बैठी है?
तड़प कर उसने अपने पास बैठी अपनी बीवी का घूंघट उठाया। ऐसा लगा सातों आसमान आ गिरे हों उस पर। सबने विसल मारी और तालियां बजाईं इस रोमांटिक अंदाज पर। उसको तो समझ ही ना आया, यहाँ तक कि नेहा शर्माई उसके यूं बेबाकी से महफिल में घूंघट उठाने पर किसी को क्या एतराज होता। निकाह हो चुका था, बीवी थी वो उसकी अब। पर वो जल्दी से उसका घूंघट वापस गिराकर सीधा हुआ। आंखों की जोत बुझ गई और उसकी जगह वीरानी ने ले ली। दिल की धड़कन मद्धम पड़ने लगी और जैसे, अज़लान शाह अपनी जल्दबाजी और बेखबरी में मारे गए तुम। ये क्या हो गया मेरे साथ अल्लाह। वो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर टूट पड़ा था। अब सब उसे मुबारकबादें दे रहे थे पर वो साएं साएं करते आसाप के साथ वसूल करता रहा। अब समझ आया वो अपने पाँव की वजह से निकाह के वक्त दूर बैठी थी। उसे नज़र ना आई थी, वरना शायद निकाह की हामी ही ना भरता वो, अगर एक दफ़ा उसे देख लेता तो। और यकीनन वो बहन के पास खड़ी होती, निकाह जैसे नाजुक वक्त पर, जैसे उसकी छोटी साली उसकी बीवी नेहा के पास खड़ी थी। अब थोड़ा रश कम हुआ, वो किसी कज़न के सहारे लंगड़ाती स्टेज पर आ रही थी। अज़लान शाह को लगा वो उसकी जान ही निकालने आ रही थी। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा, क्योंकि वो उससे मिलने का हौसला खुद में जुटा नहीं पा रहा था। वो जल्दी से उठा और जाने लगा, क्योंकि जिसका सामना वो सुहाग की सेज पर करना चाहता था, यूं बहन जैसे ओहदे पर आकर मिलेगी तो मौत जैसी तकलीफ तो होगी। अज़लान शाह सब कुछ हो सकता है, पर रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने वाला बेगैरत हरगिज नहीं, कभी नहीं हो सकता। वो साली जैसे रिश्ते को बहन की तरह समझता था। सो उस लम्हे वो उसकी पहुंच से दूर हो जाना चाहता था, पर उसी लम्हे जब वो उसके पास से होकर जाने लगा, स्टेज से उतर कर वो उसका हाथ थाम लगी। उसे लगा दुनिया थम गई हो जैसे। क्या हुआ जीजा जी, ऐसे स्टेज छोड़कर भाग रहे हैं, मुझसे नहीं मिलेंगे? आपकी बड़ी साली हूँ, सुमन दुरानी। वो अपने अजली कॉन्फिडेंस वाले अंदाज में बोली। उसके चेहरे से साफ खुशी जाहिर हो रही थी। बेइंतहा खुश थी वो इस शादी से। वो देखता रह गया। आज भी उसका हुस्न मात दे रहा था कई हसीन लड़कियों को। पिंक मैक्सी में लाइट मेकअप किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना है आपको, हमारा कोई भाई नहीं, मैं ही नेहा का भाई भी हूँ और बहन भी। वो बोल रही थी और वो देखता रह गया उस हसीनो जमील लड़की को। उस पर उसका बोलना बस दिल लूट लिया था। इतना कॉन्फिडेंट और निडर अंदाज सा उसका। ऐसी लड़की देखी कहाँ थे अज़लान शाह ने कभी। एहसास ज़ियां बढ़ता जा रहा था। वो तड़प उठा था तकदीर के इस खेल पर। काश वो ना बोलती उससे तो कुछ भरम रह जाता, पर उसका घायल करता बोलने का अंदाज मुनफरिद लगी थी वो उसे। अपना दिल बेकाबू होता महसूस हो रहा था अज़लान शाह को। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? कहीं अपनी बीवी के जलवे देखकर साकित तो नहीं हो गए? कुछ देर पहले उसका यूं घूंघट उठाने पर वो टौंट मार गई। वो क्या कहता और क्यों करता उसकी गलतफहमी दूर। उसको क्या बताता, क्या खोया है उसने? सुमन शरारती अंदाज में बोली, वो जो छोटे कद की वजह से उसे मुतवज्जो करने के लिए ऊंचा बोल रही थी। अब के उसे इशारा किया कि झुककर उसकी बात सुने। एक मिनट मेरी बात सुने, सुमन बोली। वो उसके हुक्म पर झुककर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और वो उसके कान के पास आकर बोली, वैसे आपस की बात है, मेरी बहन लाखों में एक है, आपका यूं दंग रह जाना आम बात है ना? वो तस्दीक के लिए बोली थी शोख अंदाज में। सुमन का लहजा सरशारी लिए था, क्योंकि वो खुश थी अपनी बहन को, उसकी बहन को पसंद किया गया था, तभी इतने बड़े घर में शादी हुई है। अपनी बहन की खुश नसीबी पर वो बेइंतहा खुश थी। अज़लान शाह से कोई पूछता तो कहता कि खुदा के लिए इसे कोई चुप करवा दे, ये यूं ही बोलती रही तो मर जाऊंगा मैं, फना हो जाऊंगा। नहीं, फना तो कर चुकी थी वो उसे। वो बस इस बात में सर हिलाता स्टेज से उतर गया और पंडाल से बाहर निकलकर एक तन्हा गोशे में लंबे लंबे सांस लेने लगा, अपने हवास बहाल करने लगा। नहीं पा सकता तुम्हें, कभी नहीं पा सकता। नेहा को छोड़ भी दिया तब भी नहीं पा सकता, क्योंकि तुम्हारी नफरत भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। बेहतर है अज़लान शाह, समझौता कर लो, इस हकीकत को तस्लीम कर लो, खुदा ने तुम्हारे नसीब में नेहा को ही लिखा था, ये मान लो। दफन कर दो सुमन की मोहब्बत को। तुमने अपने आप पर खुद अपनी मोहब्बत को ममनू कर दिया। तुम अपना इश्क चाह कर भी नहीं पा सकते। फिर रुखसती के वक्त उसने इमरजेंसी का कहकर जल्दी करवाई, क्योंकि ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था उसकी। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, एक बेटी की तबाही मुझे मार रही है, मेरी दूसरी बेटी को बचा लो। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हैदर शाह हाथ जोड़कर तकलीफ और अजियत से बोला। वलीद शाह से पुप्पो की आंखें भी नम थीं। ताया जान, अल्लाह आपको सेहत दे, आप ऐसी बातें ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। वलीद शाह ने उनका हाथ थाम कर कहा। उनकी आंखों की बेबसी
اذیت اپنی جگہ، پر اپنے عشق سے دستبرداری اسے بھی منظور نہ تھی۔ اسے اپنا لو، اس سے شادی کر لو، مجھ پر یہ احسان کر دو۔ حیدر شاہ نے منت کی تھی ولید شاہ سے، نہیں، اس کے ہر انداز میں نفی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کروں گا، وہ دکھ اور افسوس سے کہتا نکل گیا ہسپتال کے کمرے سے۔ آپا اسے سمجھائے نا، حیدر شاہ نے بہن سے کہا۔ حیدر ضد نہ کرو، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ حیدر شاہ کو افسوس ہونے لگا ماہ نور نے جو کیا، کیونکہ ولید شاہ کی اذیت بھی وہ محسوس کر چکے تھے۔